मुश्किल काम दिया हुआ है। लंच के बाद का सेशन जनरली बहुत मुश्किल होता है, एक तो अटेंडेंस अंदर लाने के लिए और जो है उनका फोकस रखने के लिए। मैं कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखूं और थोड़ा सा एंगेजिंग रखूं सो दैट आप सबका अटेंशन स्पैन मुझे मिले। तो वी हैव बीन टॉकिंग and I'll use English and Hindi both, so it becomes easier for all, right? So since morning we have been talking about technology trends, what is happening in technology specifically, then focusing on cooperative banks and saying why it is important for cooperative banks. I like to take that conversation further from there, right? What I would be focusing specifically is on the lending part of it, not on the overall CASA portfolio, but specifically on the lending part of it. So since morning we discussed few things where the trends are going. We spoke about India Stack, which is helping in terms of digitalization of lending business as such, right? With a lot of APIs being available for KYC, for Aadhaar authentication, for bank account verification, and so forth, which are now form a part of a larger India Stack. The regulator is also pushing for some time. आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस इशू किए थे 2 साल पहले, जिसको वो इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं, नए उसमें अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का पुश है, अलॉन्ग विथ आरबीआई अकाउंट एग्रीगेशन शुरू हुआ सहमति प्लेटफॉर्म के थ्रू। जनधन तो पहले से ही था। डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहा है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स अगर मैं अर्स्टवाइल देखूं, जब मैं व्हेन आई वाज अ किड, मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे पापा के कुछ अकाउंट्स थे कोऑपरेटिव बैंक्स में, और वो बहुत ही रिलेशनशिप बेस्ड थे। जैसे हम सब मेरे से बात कर रहे हैं कि मैनेजर को जानते हो, आप मेंबर हो, आप शेयर होल्डर हो उस कोऑपरेटिव बैंक की, आपने वहां पे अकाउंट खोला हुआ है, लॉकर है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, लोन लेना है तब भी आप वहीं से ले रहे हो, बिकॉज इट्स माय बैंक, मेरा बैंक है वो। बट जैसे जनरेशन शिफ्ट होता जा रहा है, वैसे the next generation, the third generation is slowly moving away from cooperative banks. The reason being digital platforms not being available to them. That primarily being the reason, because the big boys in the industry, private banks ले लीजिए, PSU banks ले लीजिए, सब लोगों ने डिजिटल स्विच कर लिया है पिछले कुछ सालों में। कोऑपरेटिव बैंक्स थोड़ा सा उसमें पीछे जा रहे हैं। नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स के चैलेंजेस क्या हैं, स्पेसिफिकली अराउंड कॉस्ट, और मैं उसको धीरे से एड्रेस करूंगा एज वी गो अलोंग। So Finet as a platform, our focus is purely on the lending life cycle, digitalizing the lending part of the business for any bank, NBFC, cooperative banks altogether. We start with digital onboarding. Then we have loan origination or underwriting process, which we digitalize. We have credit decisioning, which helps you automate your credit decisioning, reduce the time for loan approvals. A loan management system, which helps to digitalize the entire loan management process, which obviously a lot of core banking systems do, but we bring up a specialized loan module out there, limits collaterals for secured lending, and obviously the collection delinquency management, which is generally a big problem in terms of NPAs going up, RBI pushing to reduce NPAs, improve collection, reporting for NPAs is getting stringent day by day. So the entire gamut of lending business is what we try to cater to. What I'll do is पूरे प्रोसेस को हम धीरे से एक एक करके देखेंगे, जहां पे हम विल ट्राई टू फिगर आउट कि हो क्या क्या प्रोसेसेस में स्टेप्स हैं लैंडिंग में, और वहां पे पिछले कुछ साल में क्या चीजें इनोवेशन में हुई हैं जिससे प्रोसेस डिजिटलाइज हुए हैं, टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस लाइफ साइकिल हैज रिड्यूस, पीपल डिपेंडेंसी हैज गॉन डाउन, ऑटोमेशन हो रहा है उन प्रोसेसेस में। प्रोस्पेक्टिंग, जहां पे नए कस्टमर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने का जो होता है, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो आप कॉम्पीट किन से कर रहे हो, आप बैंक से कॉम्पीट, पहले आप बैंक से कॉम्पीट कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक से, वहां पे आपको थोड़ा सा एज मिल जाता था आपके पर्सनल रिलेशनशिप बेस पे। बट धीरे धीरे पिछले 4-5 साल में फिनटेक्स हैव टेकन ओवर, स्पेसिफिकली आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट लेंडिंग बिजनेस, राइट? फिनटेक्स हैव टेकन ओवर। फिनटेक्स और लेंटेक्स कंपनी ने क्या किया, पहले अर्बन मार्केट्स, मेट्रोज, टीयर 1 सिटीज, टीयर 2 सिटीज को अप्रोच किया, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने मॉडल्स रिफाइन करते गए। अब टीयर 3, टीयर 4 सिटीज, जहां पे आपका गढ़ था, आपकी टेरिटरी थी, वहां पे घुसना शुरू किया हुआ है। क्या कर रहे हैं वो? सोर्सिंग वो डिजिटलाइज कर रहे हैं थ्रू अकाउंट, थ्रू लोन एग्रीगेटर्स, थ्रू प्रोडक्ट रिव्यू प्लेटफॉर्म्स एंड सो फोर्थ।
दूसरा हो रहा है ऑनबोर्डिंग में। ऑनबोर्डिंग में वो इंडिया स्टैक का पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं इंडिया स्टैक को बिल्ड करने के लिए, इंडिया स्टैक को स्टेबलाइज करने के लिए, फिनटेक्स आर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ इट, जहां पे उन्होंने ऑनबोर्डिंग को काफी फास्ट ट्रैक कर दिया है। अंडरराइटिंग में वो अल्टरनेटिव डेटा सोर्सेस, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आज पहली बार लोन ले रहे हैं, तो आपके पास उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, क्रेडिट ब्यूरो से कोई स्कोर नहीं मिलता, पर अल्टरनेटिव डेटा सोर्सेज में भी काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ सालों में अंडरराइटिंग को करने के लिए। एंड देन डिसबर्समेंट कलेक्शन साइड विद पेमेंट गेटवेज कमिंग इन, यूपीआई पेमेंट कमिंग इन, ई मैंडेट कमिंग इन, भारत बिल पे कमिंग इन, वहां पे भी काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में। हम अगर एक एक चीज को देखें फ्रॉम अ फिनिट पर्सपेक्टिव कि फिनिट इन चीजों को कैसे डिजिटलाइज करने में हेल्प कर सकता है, तो जहां पे प्रोस्पेक्टिंग की बात आती है, स्पेसिफिकली आप लैंडिंग एग्रीगेटर्स के साथ कनेक्ट करो, आप लैंडिंग मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट्स को रखो, वहां पे फिनिट का इंटीग्रेशन हब और इन्वेस्टपैट हमारा लोन मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर करता है कि आपके मार्केट प्लेसेस को, आपके लैंडिंग एग्रीगेटर्स को राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिले इन टर्म्स ऑफ आपके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, टर्म्स क्या है, क्या ऑफर कर रहे हो आप। आपके लिए भी सोर्सिंग के लिए इट बिकम्स अ पॉइंट, क्योंकि आपको एक एडिशनल, जैसे आपके सेल्स की टीम बाहर जाती होगी या आपके ब्रांच मैनेजर्स कांटेक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स को, इट बिकम्स एन एडिशनल फ्लो ऑफ लीड्स फॉर यू टू गेट मोर पीपल ऑन कनेक्टेड टू द कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा है डिजिटल ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग के बारे में थोड़ी देर पहले पैनल में भी बात की थी हमने कि सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में क्या है, फ्रॉड्स रोकना, इंश्योर करना कि कस्टमर का केवाईसी ठीक हो। और स्पेसिफिकली लेंडिंग में अगर आप डिपॉजिट्स ले रहे हो, ठीक है कंप्लायंस की जरूरत है, बट अगर पैसे कहीं से आ रहे हैं आप उसके लिए मना नहीं करोगे, बट आप जहां दे रहे हो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है कि आपको बाद में रिकवरी करनी है, क्योंकि वो पैसे आपके नहीं, आपके डिपॉजिटर्स के हैं, आपके मेंबर्स के हैं, तो आप वहां पे लॉसेस नहीं कर सकते, आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते। तो केवाईसी, एएमएल चेक्स, ये सारी चीजें काफी मैंडेटरी हो जाती हैं। आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ले लो, उनको वेरीफाई करो अगेंस्ट ओरिजिनल्स, टाइम बहुत जाता है, मैनुअल एफर्ट है, उसमें कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, फ्रॉड के चांसेस हैं, बट जब आप इसको डिजिटली करने जाते हो तो डिजिटल फुटप्रिंट होता है, क्लियर इंडिकेशंस होते हैं डिजिटल सिस्टम से कि पैन दिया नाम क्या है, आधार दिया नाम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर दिया नाम क्या है, तीनों जगह पे नाम वही है, तभी आप उसको लैंड कर रहे हो। तो ट्रायंगुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेके उसको एग्रीगेट करना, विच एक्चुअली हेल्प्स इन ऑनबोर्डिंग। डेटा एनरिचमेंट है, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के साथ पूल है इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीजें करने के बाद आप जाते हो अंडरराइटिंग के लिए। आपने पहले इंश्योर कर लिया कि जिसका फॉर्म ले रहे हो, जिसका एप्लीकेशन ले रहे हो, उसको आपने क्लीन कर लिया। अब आप अपना रिस्क असेसमेंट कर रहे हो। रिस्क असेसमेंट करने के लिए भी आप बैंक स्टेटमेंट देते हो। आज की डेट में अकाउंट एग्रीगेटर्स आ गए हैं, आप वहीं से स्टेटमेंट्स पुल कर सकते हो। अकाउंट एग्रीगेशन के ऊपर अल्गोरिथम लिखने वाली कंपनीज हैं जिनका आप यूटिलाइजेशन करके आप अकाउंट बैंक स्टेटमेंट एनालाइज कर सकते हो, जो आज मैन्युअली हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल लीवरेज रेशो क्या है, कितना डेट एक्सपोजर है पहले से, कितनी इनकम में से कितना डेट में जा रहा है, आज की डेट में रीपेमेंट्स में जा रहा है, ये सारी चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं। तो यहाँ पे नोइंगली अननोइंगली मिस्टेक्स जो होती हैं मैनुअल या ह्यूमन बीइंग से, वो होने के चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट जनरेशन, आपको लोन एग्रीमेंट जनरेट करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ये चीजें भी डिजिटली हो सकती है। क्या होता था आपके अभी के केस में, आपने लोन तो सैंक्शन कर लिया बट आज स्टैम्प पेपर अवेलेबल नहीं है, स्टैम्प पेपर शाम को 5 बज गए, स्टैम्प वेंडर बंद हो गया, नहीं कर सकते डिसबर्समेंट आज। अब कल स्टैम्प पेपर खरीदिए या वीकेंड है तो मंडे को खरीदिए। डिजिटल स्टैम्प, ई स्टैम्प पेपर यूज कीजिए, ई साइनिंग कीजिए। आप 24 घंटे में कभी भी स्टैम्प प्रोक्योर करके कभी भी उसको ई साइन करवा सकते हैं, कभी भी कहीं से भी। तो आपका टाइम टू इंश्योर दैट कस्टमर को क्रेडिट जल्द से जल्द मिले, कस्टमर को लोन जल्द से जल्द डिस्पर्स हो, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है अलग अलग चीजें यूज करके। उसके साथ कन्वीनियंस बढ़ता जा रहा है, आपके लिए, खुद के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी। एंड वंस यू स्टार्ट गिविंग ऑल दिस फीचर्स टू योर कस्टमर्स, योर मेंबर्स, ऑब्वियसली वो क्यों जाएंगे प्राइवेट बैंक्स या पीएसयूज के लिए, जब उनको सारी फैसिलिटीज आपके पास मिल रही हैं। और जनरली ये देखा गया है कि जहां से कस्टमर लोन लेता है वहीं पे वो अपने फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स या अपने बाकी बैंकिंग रिलेशनशिप मेंटेन करता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप उसको, जहां से उसको फायदा होता है वहां पे वो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट तो हमेशा कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स के ज्यादा ही रहे हैं पीएसयूज या प्राइवेट सेक्टर से, तो वो तो आपके पास एनीवे एज है।
कस्टमर को डिपॉजिट्स के लिए आपके पास रिटेन करने के लिए। देन वी हैव अ लोन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैंने कहा कि आपके पास लोन मैनेजमेंट की फंक्शनलिटी आपके कोर बैंकिंग में भी होगी, बट इन केस आपकी कोर बैंकिंग में लोन मैनेजमेंट में आपको वेरिएशंस नहीं मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऑफरिंग सारे नहीं कर पा रहे हो, देन आवर कोर बैंकिंग सिस्टम हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लेंडिंग, रिटेल, कॉर्पोरेट, सारे टाइप के लोन्स आप इसमें मैनेज कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ वेरिएशन। हमारे लिए वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, तो हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ वेरिएशन दैट यू कैन गिव। आखिर में आपने लोन दे दिया, अब आता है पैसे वापस लेने की बारी, कलेक्शंस, रीपेमेंट्स। अब ई मैंडेट्स हैं, भारत बिल पे है, यूपीआई बेस्ड मैंडेट्स हैं, इन सारी चीजों से आप इंश्योर कर सकते हो कि आपको कलेक्शन के लिए ना भागना पड़े, बट आपको रेगुलर कस्टमर के अकाउंट से या तो आपके बैंक में अकाउंट हो या कहीं बाहर हो, वहां से पैसे आते रहे। बट बियॉन्ड दैट, मान लीजिए डिफॉल्ट होता है, तो आपके आरबीआई रिपोर्टिंग है, आपके डेलिक्वेंसी मैनेजमेंट है, आपके बाकी सोर्सेज हैं जहां से आप कस्टमर को फॉलो अप कर सको, उन सब के लिए इंटीग्रेशंस और सिस्टम में फंक्शनलिटीज अवेलेबल है। कुछ स्पेशलाइज्ड कलेक्शन एजेंसीज भी हैं आज मार्केट में, जिनको आप आउटसोर्स कर सकते हो कलेक्शंस, अगर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना हो रहा हो तो। जैसे मैडम ने कहा था अपने इनॉग्रल केस में कि हम डायरेक्टर्स ही जाते हैं। अब आपके लिए पॉसिबल है डायरेक्टर्स को जाना, क्योंकि आप लेंडिंग वहीं पे कर रहे हो जहां पे आपकी ब्रांचेस हैं। बट जब आप डिजिटल जाना शुरू करोगे, अगर आप ऑनबोर्ड ही कर रहे हो, मान लीजिए आप महाराष्ट्र की बैंक हो बट गुजरात से कोई अप्लाई कर रहा है, इफ यू हैव डिजिटल जर्नी, आपका केवाईसी क्लियरेंस सब ठीक है, सब कुछ क्लियर आ रहा है आपको, तो व्हाई वोंट यू इंक्रीज योर बिजनेस देयर बट यू हैविंग अ ब्रांच हियर। अब सवाल आता है, अगर डिफॉल्ट होता है तो गुजरात में कलेक्शन के लिए जाएगा कौन? उसके लिए आज की डेट में एजेंसीज हैं जिनके साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि वो एजेंसीज आपके लिए कलेक्शन करें। ऑब्वियसली देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू ऑल ऑफ दिस सर्विस दैट कम्स इन, बट देन फिट ऑन द ग्राउंड आप खुद जाके करो, उससे इन सबके कॉस्ट कम होते हैं, क्योंकि वो उन चीजों में स्पेशलाइजेशन करते हैं। So, having spoken about what all we have done out of Finit for all our customers, ये एक टारगेट स्टेट है एक डिजिटल बैंक के लिए या एक डिजिटल लेंडिंग साइकिल के लिए, जहां पे आप अपनी हर एक चीज साइकिल की इंटीग्रेट कर सकते हो, भले ही वो रिटेल लेंडिंग की हो, कॉर्पोरेट लेंडिंग के लिए हो, कमर्शियल लेंडिंग के लिए हो। आप सारे अपने चेक्स डिजिटली इंडिया स्टैक के एपीआई के थ्रू कर सकते हो। क्रेडिट ब्यूरोज आपको स्कोर देते हैं, आप डिसीजन एल्गोरिथम्स लगा सकते हो, और आपका आज की डेट में अगर लोन फ्रॉम द फर्स्ट टच पॉइंट, जहां पे आपका कस्टमर कहता है कि मुझे लोन चाहिए, वहां से आपका डिसबर्समेंट का साइकिल अगर 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन है, आप उसको 1 दिन या कुछ घंटों तक रिड्यूस कर सकते हो बेस्ड अपॉन आपका रिस्क एपिटाइट कितना है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ रिस्क एपिटाइट, क्योंकि रिस्क एपिटाइट धीरे धीरे बढ़ता है। इनिशियली कुछ संकोच होंगे कि डिजिटली केवाईसी हो गया बट मैं कैसे मान लूं, यू विल स्टिल वांट टू डू सम एडिशनल वेरिफिकेशन। मैं एक बार कस्टमर से पर्सनली बात करना चाहता हूं, भले ही वीडियो केवाईसी किया हुआ है, तो कुछ ओवर अ पीरियड टाइम यू विल स्लोली स्टार्ट फिगरिंग आउट कि इसके बेनिफिट्स हैं, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो रहा है, एंड यू विल स्टार्ट डिजिटलाइजिंग मोर एंड मोर पीसेस ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जितना मैंने अभी कहा वो सब कुछ आप एक दिन में करो, बट एक एक करके भी अगर आप करना शुरू करोगे या ग्रुप्स में करना शुरू करोगे, आपका कॉस्ट कम आएगा, आपका प्रोसेस का टाइम कम होगा। ये कुछ फाइंडिंग्स है अलग अलग रिपोर्ट से, जो कहते हैं कि डिजिटल चैनल्स की अवेलेबिलिटी से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रेट 25 से 55 गुना परसेंटेज बढ़ जाता है। आपका साइकिल टाइम तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि कुछ दिनों से आप एक दिन पे या कुछ घंटों पे लेके आ सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपके यहाँ जैसे लोन अप्लाई कर रहा है, वो किसी और बैंक में भी लोन अप्लाई कर रहा है, उसने पहले सैंक्शन कर दिया तो आपके पास से वो बोलेगा ठीक है चलो फॉर्म दे दिया है, बट मैंने कहीं और से डिसबर्समेंट ले लिया। अब जब आप अपने कंपटीशन के अगेंस्ट डिजिटल साइकिल के थ्रू जाओगे, तो चांसेस ये है कि आपके यहाँ लोन सैंक्शन पहले हो, तो आपके ड्रॉप आउट रेट्स कम होंगे, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस, ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, डिजिटली चीजें हो रही हैं, 24 घंटे हो रहा है, आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपका कॉस्ट ऑफ सर्विस कम होगा। ये सारी चीजें कहने और सुनने में सारी अच्छी लगती हैं, बट द फैक्ट अगर आप देखोगे आज की डेट में, जो जैसे मैंने इनिशियली कहा कि एक यंगर जनरेशन कोऑपरेटिव बैंक से थोड़ी दूर होती जा रही है। इफ यू हैव टू रिटेन देम, ये सब कुछ करना मैंडेटरी है। एक्सपीरियन करके एक क्रेडिट ब्यूरो है, उसके ये लेटेस्ट सर्वे के रिपोर्ट्स हैं कि आज की डेट में अगर 1 लाख से कम टिकट साइज के लोन अगर हम देखें,
तो हर 2 लोन में से 1 लोन ये फिनटेक्स या लेंटेक कंपनीज जो ऐप बेस्ड या पोर्टल बेस्ड लेंडिंग कर रही हैं वो कर रही हैं, और जिन लोगों को वो लोन दे रही हैं वो अगले 18 महीने में दूसरा लोन अप्लाई करने आता है उनके पास। तो देयर इज अ कस्टमर ह्यूज कस्टमर एक्विजिशन and also customer retention or repeat customers that is happening. So I'll leave you with this thought. अगर आप अपनी चैनल्स को डिजिटलाइज करना चाहते हो, आपके एग्जिस्टिंग सेटअप में आप चाहते हो कि आप देखो कि क्या चीजें डिजिटलाइज हो सकती हैं, तो आप हमारे साथ हम बूथ नंबर 5-6 पे हैं, आप हमारे साथ आके बात कीजिए वहां पे, वी कैन डिस्कस इन डिटेल, या इस इवेंट के बाद हम मिल के बात कर सकते हैं। हम लोग एज अ कंपनी पहली बार हम कोऑपरेटिव बैंक के साथ बात कर रहे हैं, इससे पहले हम एनबीएफसीज और बैंक के साथ काम करते थे, बट कोऑपरेटिव बैंक के साथ हम पहली बार काम कर रहे हैं। हमारी एंट्री स्ट्रेटेजी ये है कि हम कलेक्टिवली एक ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव्स के साथ काम करें, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ सिस्टम या कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द सिस्टम भी कम रहे, which helps you in terms of your commercial model or your cash flows. So with this, I end my session. Any questions? Happy to take them. हाँ मैडम। वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसकी कंडीशन क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर और बन जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर तो सॉफ्टवेयरों का कमाल है। देखिए 2 चीजें हैं इसमें, एक नियत पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, ये राइट? तो नियत कोई सॉफ्टवेयर आज नहीं बना है और आगे भी जाके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा जो नियत बता पाए आपको कस्टमर की। पर एक चीज हो रही है आज की डेट में, सहमति का प्लेटफॉर्म जो आरबीआई ने लॉन्च किया हुआ है, जो अकाउंट एग्रीगेशन का है। आपको पहले क्रेडिट ब्यूरो से मिलता था कि इसके पहले कभी चेक बाउंस हुए हैं, कभी इसने कभी लोन डिफॉल्ट किया हुआ है। अब सहमति से क्या होता है कि उसके सारे अकाउंट्स के डिटेल आपको मिल सकते हैं उसके कंसेंट के बाद, जिसको आप उसका स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हो, उसकी हर महीने की इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, वो होटल में कितना स्पेंड करता है, ट्रैवल में कितना स्पेंड करता है, कहाँ क्या करता है, विच मेक्स इट अ लिटिल बेटर इन स्टेट कि आप ये फिगर आउट कर पाओ कि हाँ ये इसकी रीपेमेंट एबिलिटी है और ये कहीं और से उसने उधारी नहीं लेके रखी। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर्मली कहीं से लोन नहीं लिया, बट मैंने आपसे लिया हुआ है, हर महीने में आपको 10,000 दे रहा हूं, बट मैं कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, स्टेटमेंट से तो पता चलेगा ना। तो वो चीजें इंप्रूव हो रही हैं धीरे धीरे, बट आप जो कह रही हो वो नियत पे कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ जी। नेशनलाइज बैंक है और अभी आपने कहा कि हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ काम करना चाहते हैं, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और नेशनलाइज बैंक इसमें बहुत अंतर है। मानता हूं। हाँ, इसमें बहुत अंतर है क्योंकि उनको सपोर्ट्स करने वाले बहुत है, हम लोगों को सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। आप एक दूसरे को ही सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए जो हम ऑफरिंग चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम ग्रुप के साथ काम करें, कि 8, 10, 15 बैंक साथ में आए और हम उनको एक साथ में प्लेटफॉर्म दें, तो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपका कम रहे, जो आपके हिसाब से काम करे। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो एनबीएफसी या नेशनलाइज बैंक से अलग है। उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं प्रोडक्ट में, कि हम कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो गैप्स है हमारे प्रोडक्ट में वो हम फिलअप करें। तो कहना यही है हमारा कि आपने हमको सजेशन दिया है कि आप साथ में काम करके ये आप टेक्निकली ये कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहना आपको ये है कि आप ये कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आप क्या सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अगर सपोर्ट हमको मिलता है तो हमको भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी और हम भी उस रफ्तार से काम कर सकेंगे। तो हमारी तरफ से हम 2-3 चीजें कर रहे हैं अभी। एक, हम आप लोगों से बात करके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में हमें और क्या चीजें करनी पड़ेंगी आपके बिहेवियर को या आपके कस्टमर के बिहेवियर को लेके उसको मैनेज करने के लिए। दूसरा, हम जैसे मैंने कहा कि हम कलेक्टिवली अगर ग्रुप आ जाता है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हम साथ में सबके मिलकर काम करें। और तीसरी चीज ये है कि हम ओवरऑल जो ये डिजिटल जर्नीज हैं
उसको हम छोटे छोटे पीसेस में बांट रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इफ यू वांट टू गो इंक्रीमेंटल, देखिए सब जैसे मैंने कहा कि सब कुछ एक दिन में करना शायद आपके लिए भी कंफर्टेबल ना हो। आज जो मैंने जर्नीज बनाई हुई है वो पूरी एंड टू एंड जर्नीज है, पर इसको ब्रेक करना है, छोटे छोटे पीसेस में जाना है, तो हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में वो कैपेबिलिटी आ जाए कि मॉड्यूलर अप्रोच हो और आप एक एक पीस को लेके जा सकते। थैंक यू सर। आरबीआई ये जो फ्लिप द आपका जो लोन्स का जो हम लोग ये सब आपके सॉफ्टवेयर में अगर डाउनलोड करेंगे तो इससे आरबीआई की परमिशन है या उसमें कोई करेक्शन या कोई उनकी वो इसमें कुछ ऐसा नहीं निकाल सकते कि ये गलत हुआ है, या उसको मान लेंगे, आरबीआई की उन डॉक्यूमेंट्स को मान लेंगे? आरबीआई की डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस 2022 अक्टूबर 2022 में पब्लिश हुई थी, उसमें 2 इम्प्रूवमेंट्स आए हुए हैं, हम उसको अलाइन करते हैं। आज की डेट में जितने फिनटेक्स, बैंक्स, बड़े बैंक्स जो डिजिटल लैंडिंग कर रहे हैं, एनबीएफसी जो डिजिटल लैंडिंग कर रहे हैं, वो सारे उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और एज अ सॉफ्टवेयर वेंडर प्रोवाइडर हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। थैंक यू। बाकी तो डिस्कस का मुद्दा है, करेंगे हम। जरूर मैडम। इफ नो अदर क्वेश्चंस वी कैन क्लोज द सेशन। हम बूथ नंबर 5 और 6 पे हैं, आप प्लीज आके मिलिए हमें, और कुछ रिक्वायरमेंट हो तो वी कैन ऑलवेज हैव अ डिस्कशन। अगर नहीं भी है तब भी प्रोडक्ट समझने के लिए आ जाइए। थैंक यू।